I hope you all are fine. So today we are starting with history part of social science. I think many of the students find it very interesting that yes, we are going to learn about history. But some of the students find it so boring. Lord, कितना boring होता है history. But don't worry, my dear students. I will try to make it interesting for you, and I am sure that you will understand what I am going to tell you. Okay? Then also, if you will be having any doubt, I am here. So let's start with the chapter. Chapter number 1 of history, that is medieval period. Okay. Now, before starting with this medieval period, first of all, you should know the history. What is the meaning of history? What we study in the history? We study about the past events occurred. About that we used to learn in the history, right? So, historians see that actually the past is very vast. So, it will be very difficult to study that vast past, right? इतना बड़ा past है जब से human being अर्थ पे आया तब से लेकर अगर अब तक देखूं तो all are the past, right? सारा का सारा है क्या past ही है. So उसको study करना is very difficult. That's why historians ने क्या किया था कि history को 3 periods में divide कर दिया था. That you have learned in 6th standard. That is ancient period, medieval period and modern period, right? Ancient जो बहुत पुराना, medieval जिसमें थोड़े बहुत changes है, and modern जो अभी चल रहा है, right? जो हमने अभी कुछ last years में देखा, that is all about the modern period, जिसमें democracy है, equality है, जो new features हैं इंडिया के, that is included, that is the modern period, right? अब बात आती है कि हमें इसमें से second period जो है, that is the medieval period, about that we have to study. See, the word medieval, that word suggests that the middle period. Middle of what? Ancient and modern. The period which comes between ancient and modern, that is called medieval period. Okay, so this is the meaning of the chapter's name, that is the period that lies between the ancient and the modern period of history is known as the medieval period. See, अब ये जो periods divide हुए हैं, इनके कुछ bases हैं. ऐसे ही divide नहीं कर दिए हैं, कुछ तो सोच के divide किया होगा, right? So there are some bases on which the divisions are made, like social, political factors, economical structures, ideas, faith, beliefs of people. पहले के टाइम की सोसाइटी, अभी के टाइम की सोसाइटी. पहले के टाइम का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वाज डिफरेंट, अभी का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, राइट? जैसे कि अगर मैं पास्ट की बात करूं तो पहले किंग्स का रूल चलता था, राइट? फिर उसके बाद क्या हुआ? गवर्नमेंट रूल आया. वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. सो दिस इज द चेंज इन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. इकोनॉमिकली भी चेंज, आइडियाज चेंज हुए, हमारे फेथ चेंज हुए. पहले के टाइम में बहुत सारे पुराने कस्टम्स, बिलीव्स होते थे, सुपरस्टिशंस होते थे. बट आज के टाइम में अगर मैं देखूं तो इतने सुपरस्टिशंस, इतने ज्यादा बिलीव, फेथ नहीं है, ठीक है? लोग धीरे धीरे मॉडर्न हो रहे हैं, राइट? सो दीज ऑन व्हिच द पीरियड्स आर डिवाइडेड. ओके, दिस medieval period actually ranged from 8th century to 18th century. See, 8th century means 700 CE वाला time, and 18th century is actually about the 1750 के आसपास वाला time. Means completely, if I say that 1000 years were there in medieval period. Okay, 8th century to 18th century is the range of actually the medieval period. अब एक्चुअली 1000 years स्टडी करना इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट टास्क. कितना ज्यादा टाइम हो गया, राइट? सो हिस्टोरियंस ने क्या किया, इसको और इजी बनाने के लिए मेडिवल पीरियड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. दैट इज अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेट मेडिवल पीरियड. अब क्या किया उन्होंने? 8th to 13th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था, दैट वाज द अर्ली मेडिवल पीरियड, एंड 13th to 18th सेंचुरी का जो टाइम था, that was the late medieval period. अब जो early medieval period था, तब काफी kingdoms जो हैं यहाँ पे थी, like बहुत सारे rulers ने यहाँ पे रूल किया, like पलास, प्रतिहर्ष, then राष्ट्रकूटास, राजपूत. These all were the rulers in our India at the time of early medieval period. Now, if I talk about the late medieval period, there were many
Afghans, Mughals. These were the rulers at the time of late medieval period. Okay. So this was about the concept of medieval period. I hope you are clear with what is medieval period and the range of the medieval period, right? Now we'll learn the importance of medieval period. ये हम पढ़े क्यों रहे हैं? क्यों हमें medieval period के बारे में पढ़ना है? क्या ऐसा खास हुआ कि हम इस particular period के बारे में इतना depth में पढ़ रहे हैं? So that we'll learn in the next topic. Okay? Dear students, before sitting in the train of medieval period and moving ahead, let's know some facts about India, that is the different names of our India. Okay, then we'll learn about the importance of medieval period. See, previously in ancient time, India was known as Bharatvarsha. Why Bharatvarsha? Because at the time there was a tribe called Bharata. On the basis of that, because that tribe was ruling over India at that time, and on the basis of that, the name Bharatvarsha derived. Okay. Other than that, India was also known as the Zambadvipa. Zambadvipa. Okay. So this was also a name of our India. After some time, there was a very good name given to our India, that India is a land of people living along Sindhu River. It was named as land of the people who are living along the Sindhu River. सिंधु रिवर को इंडस बोला जाता था. आपने सुना होगा इंडस सिविलाइजेशन. So that was the very special feature of our country India, and that's why it was named as the land of people living along with Sindhu. Now on the basis of this, some people have observed, like Parsi people have observed that there are mainly 7 rivers in India. So on the basis of that, they have given a different name to India, that is Sapta Sindhu. Sapta means what? 7. Sindhu means सिंधु जैसी और 7 नदियों वाला लैंड. ऐसी जगह, ऐसी country which is having 7 rivers, and that's why it is known as the land of 7 rivers. Sapta Sindhu was called by Parsis, and in English it is land of 7 rivers. Okay. फिर क्या हुआ ना, अब एक बात आप समझो, पहले के टाइम में क्या अभी भी काफी लैंग्वेजेस के लोग जो होते हैं, लाइक सेम लैंग्वेज होती है, लेकिन रीजन टू रीजन उस लैंग्वेज को बोलने का ना टोन डिफरेंट होता है. लेट मी एक्सप्लेन यू. अगर मैं बात करूं गुजराती की, गुजराती में क्या बोलते हैं, सुनने को क्या बोलते हैं, सांभळो छो, है ना. उसी की जगह अगर मैं काठियावाड़ी गुजराती में जाऊं, मींस उस साइड की गुजराती में, उस रीजन की गुजराती की अगर मैं बात करूं, तो वहां के लोग बोलते हैं हांभळो छो ने, राइट. सांभळो छो का क्या हो गया, हांभळो छो. तो द थिंग इज कि ये क्या था, वो बोल वही रहे हैं, मीनिंग वही है, बट वहां के रीजन के लोगों की जो प्रोनाउंसिएशन है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, राइट. सो उसी तरह से जो इंडिया के नेम पड़े, उसमें थोड़ा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस है. जब बोला गया सप्त सिंधु, तो कुछ लोगों ने उसको बना दिया हिंदू. सिंधु की जगह दे प्रोनाउंस व्हाट, हिंदू. ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज वाले जो लोग थे, उन लोगों ने बोला हिंदू. सिंधु से बना हिंदू, हिंदू से बना हिंदुस्तान. ओके. सो सी, लैंग्वेज के सिर्फ रीजन के चेंज होने की वजह से द न्यू नेम डिराइव्ड, दैट इज हिंदुस्तान. फिर क्या हुआ कि हिंदू से हिंदू को प्रोनाउंस किया गया फ्रेंच लैंग्वेज में. अब फ्रेंच लैंग्वेज वालों ने जब इसको प्रोनाउंस किया, तो दे प्रोनाउंस इंडे, इंडे, INDE, इंडे. ओके. अब इसके बेसिस पे बना इंडिया इन इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री इंडिया. ओके. सो यू कैन सी दैट कि लैंग्वेज के टोन की चेंज की वजह से we got various types of names of our country India. Okay, see, mainly after 19th century I can say that, or during the 19th century when British rule was there, at that time Hindustan became India,
because here the English language was very famous. Okay, and that's why in 19th century, during the 19th century, during the British Raj, our Hindustan became India. Okay, and that's why today we got it as India. So I hope you came to know how the name of our country, India, derived. Okay, so now let's move to the importance of medieval period. Okay, now let's talk about the importance of medieval history. Okay, see, in the later medieval history, there was the increase in, or we can say there was a rise in Muslim dynasties. Due to that, कल्चरल इन्फ्लुएंस हुआ, कल्चर में चेंज हुआ, एक्सचेंजेस हुए, एक दूसरे के आइडियाज एक्सचेंज हुए, मुस्लिम्स यहाँ आए तो उनकी आइडियाज, उनका कल्चर वी केम टू नो अबाउट दैट, हमारे कल्चर के बारे में दे केम टू नो अबाउट. सो इस तरह से कल्चरल इन्फ्लुएंस हुआ, आइडियाज का एक्सचेंज हुआ. अदर देन दैट, एट दैट टाइम देयर वाज द इंटरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ. इंटरेक्शन भी हुआ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया के बीच में, जिसकी वजह से अगेन कल्चरल इन्फ्लुएंसेस देखने को मिले. उनके कल्चर और हमारे कल्चर के आइडियाज एक्सचेंज हुए. सो वी कैन से दैट कि एट दैट टाइम एक ऐसा कल्चर बना जो एक्चुअली इंडिया का कल्चर कहलाता है, जिसमें कोई भी रीजन या फिर कास्ट बैरियर्स नहीं है. हमने अलग अलग रीजन के लोगों का कल्चर समझा, उनके कल्चर को एक्सेप्ट किया, एंड that is actually the culture of our India, जो बिना कोई कास्ट बैरियर, बिना कोई रीजन, बिना कोई रिलीजन के बैरियर के बना हो. Okay, other than that, if I consider the next point, that is the political stability was seen at the time of medieval period. See, the Muslim rulers actually ruled our India over a long time. अब क्योंकि वो इतने टाइम से हमारे यहाँ रूल कर रहे थे, तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बन रही थी. ओके, और उस टाइम पे मुस्लिम रूलर्स ने जो है ट्रेड एंड कॉमर्स को काफी अच्छा पुश दिया. ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत अच्छे से चलने लगा. इवन कॉमन पीपल वर वेरी हैप्पी बिकॉज उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा रहा था, लोगों का ध्यान रखा जाता था, वो लोग काफी अच्छे से लोगों को ट्रीट करते थे. अदर देन दैट, उन्होंने काफी टाउन, सिटीज वगैरह भी डेवलप किए. मुगल्स के टाइम पे अगर हम बात करें तो उन्होंने काफी डेवलपमेंट कराया था. कितने सारे टाउन एंड सिटीज उन्होंने डेवलप किए थे, कितने सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे. सो इन शॉर्ट, एट दैट टाइम पीपल वर आल्सो हैप्पी, टाउन्स एंड सिटीज वर डेवलप्ड, एंड द मेन थिंग दैट इज द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सीन. बिकॉज अगर एक ही रूल चलता है ना तो आइडियाज में चेंज नहीं आता, तो बहुत ही अच्छे से स्मूथ वे में सारी चीजें चलती हैं. ओके, if I consider the next point, that is the overseas trade flourished. At that time export import भी बढ़ गया. जैसे कि हमने लास्ट पॉइंट में देखा कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो बढ़ गया था, राइट. ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा तो उसके साथ साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट. एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है? बाहर की कंट्रीज में बेचना और बाहर की कंट्रीज से कुछ खरीदना. ओके, अगर मैं यहाँ से बाहर की कंट्रीज में कुछ बेच रही हूँ तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, और अगर मैं बाहर की कंट्रीज से कुछ परचेज कर रही हूँ, कुछ मंगवा रही हूँ, तो दैट इज द इम्पोर्ट. आपने कई बार सुना होगा इम्पोर्टेड है ना, मीन्स बाहर से मंगवाया है. सो जब ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ा तो अगेन क्या हुआ, दूसरी कंट्रीज के साथ हमारे टर्म्स अच्छे हुए, हमारे रिलेशंस अच्छे हुए. दूसरी कंट्रीज का कल्चर हमें थोड़ा बहुत समझ आया, वहाँ का कल्चरल इन्फ्लुएंस हुआ, उनकी आइडियाज और हमारी आइडियाज का एक्सचेंज हुआ. अगेन हमारे यहाँ कल्चरल इन्फ्लुएंस देखने को मिला. अदर देन दैट, there was the spread of Islam and Bhakti and the Sufi movement at that time. Medieval time में ये बहुत ही खास बात थी कि तब भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट्स ये बहुत ज़्यादा चले. इस भक्ति, सूफी, इस्लाम सारे के सारे मूवमेंट्स का सिर्फ एक ही मोटिव था, टू स्प्रेड द फीलिंग ऑफ लव, द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड. ये फीलिंग्स को स्प्रेड किया इन मूवमेंट्स ने. और तब के टाइम में अगर आप देखें तो इंडिया जो है तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी यूनिटी थी हमारे इंडियन लोगों में, और इसीलिए ही थी बिकॉज इस टाइप के मैसेजेस स्प्रेड किए गए थे. ओके, अदर देन दैट, द लास्ट पॉइंट इफ आई कंसीडर, देयर वाज आल्सो द आर्ट एंड आर्किटेक्चर शोकेस एट दैट टाइम. आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई. इवन मुगल्स की बात करें तो बेस्ट है उनके आर्किटेक्चरल स्टाइल्स.
ठीक है। आर्किटेक्चर में मुगल्स ने एक से बढ़कर एक चीज बनाई है। कार्विंग के मामले में बात करूं, मिनारेट्स की बात करूं, या फिर डॉम्स जो उन्होंने बनाए, या फिर रेड स्टोन का जो उन्होंने यूज किया, मार्बल का जो यूज किया, ताजमहल इज द बेस्ट एग्जांपल, राइट। अदर देन दैट उन्होंने बहुत सारे अलग अलग मॉन्यूमेंट्स बनवाए, जैसे कि जामा मस्जिद, मोती मस्जिद। शाहजहां के टाइम पे उन्होंने इतनी सारी चीजें बनवाई, रेड फोर्ट। So these are some examples of their architectural style. उन्होंने बहुत सारे different architectural styles जो हैं मुगल वे में शो की है। Okay, so this was also a great achievement at that time, the medieval style. So medieval time period में काफी सारी ऐसी चीजें देखने को मिली, जैसे कि मैंने आपको बताया। Okay, now the question arises, जो इतनी सारी information हमारे पास है medieval time period की, वो आई कहाँ से? How we came to know about the medieval period, the events occur at that period, कौन से rulers ने वहाँ पे rule किया, कब import बढ़ा, export बढ़ा, and all these things. How we came to know. So about that only, we need to learn about some sources of medieval history. Sources means what? जिन चीजों से हमें medieval time period की information मिली, हमें उस particular time period की information जिन चीजों से मिली है, उन्हें बोलेंगे sources of medieval history. Okay, and that thing we are going to learn in the next video, which I am going to send you. That is regarding sources of medieval history. Okay.